सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और दोज़ख ने बाहम झगड़ा किया। दोज़ख ने कहा, मेरे अंदर बड़े बड़े सरकश मुतकब्बिर लोग होंगे, और जन्नत ने कहा, मेरे अंदर कमजोर और मिस्कीन किस्म के लोग होंगे। तो अल्लाह ने उनके दरमियान फैसला फरमाया, ऐ जन्नत तू मेरी रहमत है, मैं तेरे जरिए जिस पर चाहूंगा रहम करूंगा, और ऐ दोज़ख तू मेरा अजाब है, मैं तेरे जरिए जिस पर चाहूंगा अजाब दूंगा, और तुम दोनों को भरने की जिम्मेदारी मुझ पर है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। Narrated by Abu Sa'id Khudri. May Allah be pleased with him. Prophet Muhammad, peace be upon him, said that heaven and hell argued with one another. Hell said, there will be very big rebellion and proudest persons in me. Heaven said, there will be very weak and pauper persons in me. Then Allah arbitrated in between them, that, O heaven, you are from my tender. I will show my tenderness by you on those whom I wish. And O hell, you are from my torment. I will give torment by you to those whom I wish. It is my responsibility to fill both of you. Narrated by Muslim. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30 رواه أبو داود والترمذي. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا. تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. اس حدیث کو امام ابو داؤد امام ترمذی نے روایت کیا. Narrated by Imran bin Hussain. May Allah be pleased with him. That a man came to Prophet Muhammad, peace be upon him, and greeted, Assalamu alaikum. Then sat down. Prophet replied his salam and said, he got 10 virtues. Then another man came and greeted, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Then sat down. Prophet replied his salam and said, he got 20 virtues. Then again another man came and greeted, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Then sat down. Prophet replied his salam and said, he got 30 virtues. Narrates by Imam Abu Dawud and Imam Tirmidhi. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद. सदर मजलिस, मेहमानान इकराम लेकर अभी अभी आप हजरात के सामने जो दो हदीसें पेश की गई हैं, इसमें पहली हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकशी और तकब्बुर के अंजाम बद की वजाहत फरमाई है कि मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नम है. इसी तरह मिस्कीन, गरीब और तंगी में रहने वाले लोगों की फजीलत का बयान है कि जिनको कोई इम्तियाजी मुकाम माशरे में हासिल नहीं होता, लेकिन वो ईमान तकवा के बुलंद मकाम पर फाइज होते हैं. इस हदीस में जन्नत को अल्लाह की रहमत कहने का मतलब मजहर रहमत है और जहन्नम को अजाब कहने का मकसद मजहर अजाब है. इसमें अल्लाह की मशीयत का जो जिक्र है, तो इसका मतलब ये नहीं वो यूं ही जिसे चाहेगा जन्नत में और जिसे चाहेगा जहन्नम में भेज देगा, बल्कि उसकी ये मशीयत उसके मुकर्ररा उसूल के मुताबिक ही होगी. जन्नत में जाने वालों को वो आमाल सौलिया की तौफीक से नवाजता है, जिससे उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान होता है. और जो जहन्नम में जाने वाले होते हैं वो मासियत की दलदल से ही नहीं निकल पाते, जिसका नतीजा होता है कि जहन्नम उनका मुकद्दर बन जाती है. दूसरी हदीस के अंदर सलाम करने की फजीलत और इसके अजर सवाब का बयान है कि जिस तरह हम सलाम के अल्फाज में इजाफा करेंगे, अल्लाह हमारे हसनात में इजाफा
इजाफा करेगा। और ये कि अगर हम मुकम्मल सलाम यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेंगे तो हमें मुकम्मल 30 नेकियां मिलेंगी। मुनासिब मालूम होता है कि मैं यहाँ इस बात की भी वजाहत कर दूँ, कुछ लोग सलाम के बाद मगफिरतु व रिज़वानु के अल्फाज का इजाफा करते हैं, तो वो हदीस ज़ईफ है। हदीस में सलाम को आम करने और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करने की तरगीब दी गई है। लेकिन अफसोस है मुसलमानों की जमात पर कि अगर कोई गर्ज व मकसद ना हो तो एक दूसरे से मुंह फेर कर गुजर जाते हैं, सलाम नहीं करते। बात लोगों का मामला तो यहाँ तक पहुँच गया है, वो अपने से कम उम्र वाले या कम मान वाले शख्स से सलाम करने को अपनी तौहीन समझते हैं, और ऐसा फक्र व गुरूर की वजह से होता है। जबकि अभी आपने गुरूर व तकब्बुर की मजम्मत समाअत की है कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। उसी तरह मिस्कीनों, गरीबों को जिन्हें हकीर और कमतर समझा जाता है, इनकी अक्सरियत जन्नत में जाएगी। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें गुरूर और तकब्बुर से बचने और लोगों के साथ उल्फत और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम।